یہ سوچ کے لٹا دیا کرو۔ آؤ نبی کی زندگی دیکھو صاحب، اسلام کے ابتدائی دور کی بات ہے۔ آج ہم اپنوں کو نہیں اپناتے، میرے نبی نے غیروں کو سینے سے لگایا ہے۔ کردار دیکھ میرے نبی کا، انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے نبی کا زمانہ ہے، ابتدائی اسلام کا دور ہے، کفار بھی ہیں ایمان والے بھی ہیں، کافروں کی کثرت ہے ایمان والوں کی قلت ہے۔ ابھی کچھ ہی لوگ اسلام لے کر کے آئے ہیں، اللہ اکبر، ایمان کچھ ہی لوگ لائے ہیں۔ ابھی اس دور میں ایک بچہ ہے، اس کے باپ کا انتقال ہوا، ماں کی آغوش میں تھا، کچھ دن گزرے ہوش سنبھالا، ماں بڑی محنت و جتن کے بعد لوگوں کے گھر کام کر کے بچے کو پالتی رہی۔ اور جوانوں میری بات ذرا دل سے سن لینا، ماں باپ بڑی محنت سے اولاد کو پالا کرتے ہیں، ان کی قدر کر لیا کرو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے، اگر تم نے بچپن میں ایک بار اپنی خواہش ظاہر کی تھی، ابا مجھے نئے جوتے چاہیے، مجھے نئے کپڑے چاہیے، تو ماں باپ نے تمہاری خاطر اللہ کی قسم اوور ٹائم ڈیوٹیاں کر کے اس وقت تک گھر نہیں آئے ہیں جب تک تیری پسند کے جوتے نہیں لائے ہیں، اس وقت تک واپس نہیں آتے ہیں جب تک تیرے پسند کے کپڑے نہ خرید لیں۔ انہوں نے تیری پرورش ایسے کی ہے کہ تیری ایک ایک خواہش کا خیال کیا ہے، مگر کب جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اگر یہ دوائی مانگا کرتے ہیں تو ہمیں ان کے لیے 10 روپے کی دوا مہنگی لگا کرتی ہے۔ ہم کہا کرتے ہیں کہ تمہیں پالیں یا اپنے بچوں کو پالیں، تمہیں دیکھیں یا اپنے بچوں کو دیکھیں۔ نادان ماں باپ کے خرچوں میں بچوں کو بیچ میں نہ لایا کرو۔ اگر امیر بننا چاہتے ہو اپنی کمائی کو ماں باپ پہ لٹایا کرو، اللہ اتنا دے گا کہ تمہیں 100 راستوں سے اتنا نہیں مل سکتا جتنا ماں باپ کی ایک دعا تمہیں دے سکتی ہے۔ تم تو چاہت سمجھتے بھی نہیں کہ ماں باپ کی دعائیں کتنا کامیاب کر سکتی ہیں، بس وقت بہت کم ہے۔ ماں باپ بڑی محنت سے بچوں کو پالا کرتے ہیں، خدا را ماں باپ کی عزت کر لیا کرو، ماں باپ کی قدر کر لیا کرو۔ اللہ اکبر، ماں نے بچے کی پرورش کی ہے، بچے نے ہوش سنبھالا، آنکھیں کھول کے دیکھا کہ ماں کے بدن پہ جو لباس ہے وہ کئی جگہ سے پھٹ چکا ہے۔ ایک دن بچہ ماں کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے، ماں تیرے بدن کا جو لباس ہے یہ کئی جگہ سے پھٹ چکا ہے، اے ماں اس میں کوئی پیبند لگا دے، جب تیرا بدن دکھتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے۔ ماں رونے لگ جاتی ہے، کہتی ہے، بیٹے تیرے باپ کو گزرے عرصہ ہو گیا ہے، آج تک کوئی دروازے سے ہم سے یہ پوچھنے نہیں آیا کہ تم نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، کسی نے آج تک ہماری ضرورت کے بارے میں نہیں پوچھا ہے۔ اے بیٹے کھانے کے لالے رہتے ہیں، کئی کئی دن کا فاقہ ہوتا ہے تیری ماں کا، بتا کپڑے کیسے درست کر لیتی۔ بچہ کہتا ہے، ماں اگر اجازت دے تو چچا کے دروازے سے جا کر کے لے آؤں۔ یہ کافروں کی کہانی ہے، یہ کلمہ پڑھنے والوں کی کہانی نہیں ہے، ابھی اسلام نہیں لائے ماں بیٹے، یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ ماں نے کہا تھا، بیٹے کہاں جائے گا؟ ماں نے جیسے اتنا کہا کہاں جائے گا؟ بچہ کہتا ہے، ماں میں چچا کے دروازے پہ جاؤں گا، اس سے جا کر کے تیرے لیے ایک چادر لے کر کے آؤں گا۔ جیسے اتنی بات بچے نے کہی ہے، ماں کہتی ہے، بیٹے یہ مکے کی زمین ہے، یہاں تو اپنے اپنے نہیں ہوا کرتے ہیں، پرایوں کا بھروسہ کیا ہے؟ ماں سے بیٹے نے اتنا سنا ہے، کہتا ہے، ماں ایک بار اجازت تو دیتے، ہو سکتا کہ باپ کے رشتے کا کچھ خیال چچا کو آ جائے۔ ماں نے کہا، بیٹے تیری مرضی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا تیرا چچا تجھے کوئی چادر دے گا۔ بچے نے کہا، ماں اجازت تو دے۔ چھوٹی سی عمر بچے کی ہے، بچہ چچا کے دروازے پہ گیا، دستک دی ہے، جا کے جیسی دستک دی اندر سے آواز آئی، کون؟ کا تیرے بھائی کا بیٹا آیا ہے۔ جیسی اتنا چچا نے سنا ہے، دروازہ کھولا، کہا کیسے آئے ہو؟ اللہ اکبر، جیسی اس نے کہا کیسے آئے ہو، بچہ رونے لگ جاتا ہے، رو کے ماں کی غربت کی کہانی سنانے لگتا ہے، کہتا چچا جب سے باپ گئے ہیں کئی کئی دن کے فاقے ہو گئے ہیں، آج کوئی کھانے کو پوچھنے تک نہیں آتا ہے۔ اور میری قوم کے جوانوں میں تم سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ تباہی نہیں ہے، یہ وبال ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، آج اگر کسی بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے انتقال پر چچا آتے ہیں، اس کے بچوں کو سینے سے لگا کر کے مہمانوں کے سامنے کہتے ہیں، آج سے ان کے باپ ہم ہیں، ان کی پرورش ہم کریں گے۔ لیکن جب مہمان چلے جاتے ہیں، 3 دن کا عرصہ گزر جاتا ہے تو یہی چچا پلٹ کے بھتیجوں کی طرف دیکھتا تک نہیں ہے، کبھی یہ نہیں پوچھتا بتاؤ تم نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، تمہیں پانی ملا ہے کہ نہیں ملا ہے، یتیم بھتیجا کس حال میں زندگی گزار رہا ہے، اس چچا کو خیال نہیں آتا ہے۔ کتنے بھتیجے ایسے ہیں کہ فاقوں پہ زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ کیا چچاؤں کی کہانی یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی اگر یتیم بھتیجا گھر میں آتا ہے اور اپنا بیٹا اچھا کھانا کھاتا ہے تو چچا کہتا ہے اسے لے کے اندر چلا جا ورنہ اس بھتیجے کی نظر لگ جائے گی، اور لوگوں جب کھانے کو نظر یتیموں کی لگنے لگے تو سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی ہے۔ اور
जब चचा अपने बच्चों को यतीमों की नजर से छुपाने लगे तो समझो कयामत दरवाजे पे आ चुकी है। फिर पूछने की जरूरत नहीं है कयामत कब आएगी। ये हम अपनों पे जुल्म करते हैं, साहिब अपनों पे जुल्म करते हैं। अल्लाह अकबर, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अपने घरों के हालात देखो, अगर किसी का इंतकाल हो गया है तो यतीमों को कोई देखने वाला नहीं है। हम 50,000 मस्जिद में तो दे सकते हैं, 5,000 बेवा भाभी को नहीं दे सकते हैं, 10,000 दे करके अपने ऐलान तो करा सकते हैं, लेकिन 1,000 यतीम भतीजे की जेब में नहीं डाल सकते हैं। इसलिए कि जो मस्जिद में दिया जाता है उसे दुनिया देखती है, जो यतीम को दिया जाता है उसे कोई नहीं देखता है। हाँ, मैं कहता हूँ कोई देखे ना देखे, मुस्तफा देख रहे हैं। कभी तन्हाई में आकर के यतीम की जेब में पैसा डाल दिया करो, नतीजा ये होगा कि जैसे यतीम की जेब में तेरी कमाई का पैसा आएगा, उधर यतीम मुस्कुरा जाएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या आज हर घर से जनाजे नहीं उठ रहे? आज मौतें होलसेल में हो रही हैं। पहले 1-1-2 की खबर आती थी, अब 10-10 की खबरें आती हैं। तो मैं समझता हूं यकीनन हमारी इस बस्ती में भी कितने यतीम और बेवाएं होंगी। मैं ये नहीं कहता मस्जिद में देना गुनाह है या बेफायदा है, जितना अल्लाह दे उतना लुटाओ। मैं कहता हूं मस्जिद में तो घर बेच के लगा दो तब भी कम है, इसलिए कि वो रब का घर है। लेकिन जरूरी है उससे पहले यतीमों गरीबों का ख्याल रखना। आज मस्जिदों का हाल आप जाकर के देखो, करोड़ों करोड़ रुपए मस्जिद में लगे हैं और इमामों की तनख्वाह वही 5,000 रुपए ली। अपने लिए 20,000 की सब खरीद लाएगा और इमाम का 4 महीने का खर्चा चलाएगा 20,000 में। मस्जिदें कच्ची हों, नमाजें पक्की हों तो फिर जीने का भी मजा है, मरने का भी मजा है। और मस्जिदें पक्की हों, नमाजी कच्चे हों, दिलों में कदूरत हो तो फिर ना जिंदा रह के खैर है ना फिर मरने के बाद खैर है। खुदारा यतीमों गरीबों का ख्याल रखा करो, सबका ख्याल रखा करो। अल्लाह ने दिया है लुटाया करो। आओ मेरे नबी का किरदार देखो। बात याद है ना आपको जो मैं कह रहा था? अगर याद है तो बोल दें सुभान अल्लाह। अभी सब नहीं बोले, अगर सब नहीं बोले तो फिर कलमा पढ़ लें क्या? हाँ माशाअल्लाह समझदार लोग हैं, और जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाँ लगना चाहिए, कुछ जाने वालों को पता चलना चाहिए कि हमारे उठने पे जलसा खत्म नहीं हुआ है। अब भी नबी के आशिक बैठे हुए नबी नबी कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो इतनी सर्दी में भी नबी की याद में बैठे हैं। और मैं अपने बाप की बात तो नहीं कर रहा, जो भी बात कर रहा हूं रसूल पाक की बात कर रहा हूं। अगर ये सच है तो फिर जिंदा दिली दिखाइए। मुझे एहसास है कि ठंडी कितनी है, मगर मैं बोल रहा हूं तो पसीना आ रहा है। उम्मीद है आप भी बोलेंगे तो कुछ गरमाई तो आ ही जाएगी। और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठा दिए, अल्लाह उन्हें आज की रात के सदके में मुस्तफा का मदीना दिखा दे। सुभान अल्लाह। देर आयत दुरुस्त आयत, बगैर कहे हाथ उठ गए। मगर कोई बात नहीं, अगर सुबह का भटका शाम को घर आ जाता है तो लोग उसे खोया हुआ नहीं कहते। बाद में भी उठे, नबी के मदीने की मोहब्बत में तो उठे। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। नबी को तो बस पुकारने वाला हो, आज भी मदद पुकारने से पहले आ जाती है। बात समझ रहे हैं आप? आया चचा, मेरी माँ के बदन पे कपड़ा नहीं। बच्चे ने रो के चचा से हाल बयान किया। चचा ने भतीजे के सीने पे हाथ मार के धक्का दिया। कहा कोई मेरी जिम्मेदारी तो नहीं तेरे माँ की परवरिश करना? अल्लाह अकबर। बच्चे ने इतना जैसी धक्का दिया, चचा ने भतीजे ने मुड़ के चचा को देखा। कहा चचा एक बार तो ख्याल कर ले, कम से कम एक चादर की दे दे जिससे मेरी माँ का बदन छुप जाए। चचा ने दरवाजा बंद किया। बच्चा रोता हुआ वापस आ रहा था। जैसी रोता हुआ रास्ते में आया, रास्ते में एक मेरे नबी के गुलाम से मुलाकात
मुलाकात हो जाती है। जैसी बच्चे ने नबी के गुलाम को देखा है, गुलाम ने बच्चे को देखा है, करीब आए, कहा बेटे क्यों रो रहे हो? बच्चे ने इतना सुना, यूं मुंह उठा के कहने लगा तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। आने वाले ने कहा था बेटे पता तो सही ये दर्द क्या है, ये दुख क्या है, ये उम्र तो हंसने खेलने की थी, तेरी आंख में आंसू कैसे आ गए? बच्चे ने कहा था जाई ये जमाना अजीब है, लोग सुना करते हैं, रो करके हंस के उड़ाया करते हैं, मेरा दर्द दिल है, मुझ पर रहने दीजिए। इतनी बात बच्चे ने कही थी। अल्लाह अकबर। मुस्तफा का गुलाम कहता है बता तो सही। बच्चे ने जब हाल दिल सुनाया तो गुलाम नबी मुस्तफा का आशिक मुस्कुराने लग गया। बच्चे ने कहा साहिब मैंने पहले कहा था कि मेरी दास्तान सुन के दुनिया हंसेगी, कोई मेरे दर्द दिल का इलाज नहीं करने वाला है। इतना सुना मुस्तफा के गुलाम ने मुस्कुरा के कहा था मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि तेरे दर्द का इलाज मिल गया है, तेरे मर्ज का मदावा मिल गया है। बच्चे ने कहा था कहना क्या चाहते हो? कहा सुनो एक बात बता देता हूँ, एक अमीर की गली बता देता हूँ, एक रास्ता बताता हूँ जिस चौखट से आज तक कोई खाली नहीं गया है। तुम्हें सिर्फ एक चादर चाहिए तो जाओ हरम शरीफ में चले जाओ, वहां पर हमारे नबी बैठे हुए हैं, उनके दरवाजे पे जाकर के मांग लो, आज तक कोई खाली वहां से नहीं आया है। बच्चा माँ का फरमाबरदार था। बच्चा कहने लगा कि बाद में जाऊंगा, पहले माँ के दरवाजे पर जाऊंगा। बच्चा माँ के पास आया है, कभी रोता है कभी मुस्कुरा देता है। माँ कहती है बेटे बात क्या है, तू रो क्यों रहा है और फिर मुस्कुरा क्यों रहा है? बच्चा कहता है माँ चचा की बात याद आती है तो आंसू निकल जाते हैं, और जब मुस्तफा की बात याद आती है तो फिर लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है। जैसे बच्चे ने इतना कहा था, माँ ने कहा बेटे ये मुस्तफा कौन है? का मुसलमानों के रसूल है, सुना कि आज तक उनकी चौखट से कोई खाली नहीं गया है। ए माँ इजाजत दे तो मैं उनसे तेरे लिए चादर मांग लाता हूँ। माँ कहती है बेटे ना उनके दरवाजे पे मत चले जाना, सुना के कि वो काम बाद में करते हैं, कलमा पहले पढ़ाया करते हैं। बच्चा कहता है माँ अगर ये बात है तो तुझसे वादा करता हूँ कलमा नहीं पढ़ूंगा, अगर पढ़ाएंगे तो चादर छोड़ आऊंगा। माँ ने कहा बेटे मत जा। माँ ने जैसे इतना कहा है बेटा कहता माँ इजाजत देते, अगर बात कलमे की है तो चादर मिलेगी तो लाऊंगा, कलमा पढ़ाएंगे तो छोड़ आऊंगा। माँ ने इजाजत दी है। अल्लाह अकबर। अब मेरे नबी का करम देखो, बच्चा हरम शरीफ के दरवाजे पर आया है, मेरे नबी हरम शरीफ में जलवागर है। बच्चे ने आके मेरे नबी का नाम लेकर के पुकारा है। आका करीम ने पीछे मुड़ के देखा, बच्चे को दरवाजे पे खड़े देखा, सरकार मुस्कुरा देते हैं। अल्लाह अकबर। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। मेरे नबी मुस्कुराए बच्चे की तरफ देखा, कहो बेटे क्या कहना चाहते हो? बच्चा दूर से कहता है सुनो मुझे तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना है। मेरे नबी फरमाते हैं बेटे वो तेरी मर्जी है, पता किस लिए आया है? का एक जरूरत थी मैं तुम्हारे दरवाजे तक आ गया हूँ। मेरे नबी अपनी जगह से उठे हैं, बच्चे के करीब आए हैं। अल्लाह अकबर। बच्चे के सर पे दस्ते शफकत रखा है, बस दस्ते शफकत का रखना था कि बच्चे की आंख में आंसू आ जाते हैं। ऐसा बच्चे को महसूस होने लगा जैसे आंसुओं से तर हो जाते हैं। मेरे नबी फरमाते मुझे बच्चे के चेहरे में अपना बचपन याद आ गया था, उसकी यतीमी में मुझे अपने बचपन का दौर याद आ गया था। जब उसकी माँ की कहानी सुनी है तो मुझे माँ अपनी आमीना की याद आ गई है। आका करीम बच्चे की तरफ कहते हैं तुझे चादर चाहिए? कहा हाँ। बच्चे की तरफ सरकार ने चादर बढ़ाई है। बच्चा फिर कहता है मैं चादर ले रहा हूँ, कलमा नहीं पढ़ूंगा। मेरे नबी फरमाते बेटे वो तेरी मर्जी है। और जब बच्चे ने चादर हाथ में ली है और यूं सीने से लगाई है, बस चादर नबुव्वत का सीने से लगना था कि आका का इश्क दिल में उतरना शुरू हो जाता है। बस दिल में उतरने का मंजर क्या था? फिर तो आलम ये था कि जुल्फ देखी है, कि नजरों ने घटा देखी है, अरे रुक गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। बच्चे ने चादर सीने से लगाई, बच्चे ने चादर सीने से लगाई और लगा के जब चला घर की तरफ, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें खाने की तुम्हारे बच्चे भूखे हों और तुम्हें कहीं एक रोटी मिल जाए तो बताओ जब लेके चलोगे तो पलट के देने वाले की तरफ देखोगे या मंजिल पे नजर होगी? बस ये ख्याल होगा कितनी जल्दी मैं अपने घर पहुंच जाऊं और अपने बच्चों के मुंह में जाके ये रोटी के टुकड़े डाल दूं। ये हर जरूरतमंद का ख्याल है। मगर वाह रे मेरे नबी के इश्क की
गरमाई तो देखो। बच्चे ने चादर सीने से लगाई है। होना तो ये था कि बस नजर फेर के घर तक जाना था, लेकिन जब चलता है कुछ कदम आगे बढ़ाता है, फिर मुड़ के मुस्तफा को देखता है, फिर कदम आगे बढ़ाता है, फिर मुड़ के मुस्तफा की तरफ देखता है। एक तरफ माँ की जरूरत है, दूसरी तरफ अब मुस्तफा की मोहब्बत है। बच्चा सोचने पे मजबूर है, जाए तो किधर जाए, माँ के बदन को जाके छुपाए या जाके खुद मुस्तफा के दामन में छुप जाए। मगर शाकिब बच्चे ने दौड़ लगाई, माँ के दरवाजे पर पहुंचा है। माँ ने बेटे के हाथ में चादर देखी है। माँ ने कहा बेटे पहले ये बता दे कि तूने उसका कलमा तो नहीं पढ़ा है। बच्चा कहता नहीं माँ मैंने कलमा नहीं पढ़ा है। बता उसने तुझसे क्या कहा था। बच्चा कहता है माँ किसी ने तुझसे झूठ कह दिया है। वो तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि अपने मन की बात कहता ही नहीं है, वो सिर्फ दूसरों के मन की बात सुना करता है। तुझसे कलमे को कहा भी नहीं था, मैंने दूर से जाके कह दिया था मुझे तेरा कलमा नहीं पढ़ना है। उन्होंने मुझे कलमा नहीं पढ़ाया। ए माँ मुझे चादर दे दी है। इतनी बात का सुनना था कि माँ की आंखों में आंसू आए। माँ तड़पी और रो के कहती है बेटे सिर्फ चादर लेके आया है। बच्चा कहता है माँ सिर्फ चादर तो चाहिए थी, और क्या चाहिए था। माँ कहती नहीं बेटे सिर्फ चादर लेके आया है, उस नबी का कलमा लेकर के क्यों नहीं आया है, उस नबी का दीन लेकर के क्यों नहीं आया है। उस औरत ने उस चादर को सर पे रखा है और कहती बेटे मुझे उस रसूल की चौखट पे ले चल जिसने तुझे ये चादर अता कर दी है। अल्लाह अकबर। वो बच्चा माँ का हाथ पकड़ के आया है और आने के बाद मुस्तफा की चौखट पे खड़ा हो जाता है। मेरे नबी को आवाज देता है। सरकार ने फिर मुड़ के देखा है, आका तशरीफ लाए और बच्चे के सर पे हाथ रख के फरमाते हैं बेटे अब और क्या चाहिए। अल्लाह अकबर। मंजर देखिए, आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद करे, मंगते का भला हो। आका फरमाते हैं अब क्या कमी रह गई। खातून ने कहा था आका अब सिर्फ चादर नहीं चाहिए बल्कि हमेशा के लिए तेरा दामन करम चाहिए। आका फरमाते हैं तू तो नफरत करती थी, अब दामन करम क्यों। तो उसने इश्क के अंदाज में बरेली की जबान में कहा था नमियाती नजीरो कफी नजरी मिसले तू रसूल पैदा जाना जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे तो सरा जाना। और जब सखावत देखी थी तो मचल के कहा था कौन देता है देने को लू चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगों मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। मैंने इतनी देर गुफ्तगू की, उसका माहसल सुन लो। हमें अपनी पूरी जिंदगी कोशिश ये करनी है कि हम अपने आप में आका की अदाएं उतारेंगे। दूसरी कोशिश ये करनी है हमें अपने रिश्तों का ख्याल करना है, अपनों की कदर करनी है। तीसरी कोशिश ये है माँ बाप की इज्जत करनी है। चौथी कोशिश ये रहेगी हम अपनी हलाल कमाई मुस्तफ़ा के गरीब उम्मतियों के काम में लगाएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपने किसी एक बात पे भी अमल कर लिया तो मेरा आना कामयाब, आपका बुलाना कामयाब। और वरना जैसे बैठे वैसे ही उठ गए तो फिर अल्लाह खैर करे। हमारे मौलाना शमीम साहब के दादा इस दुनिया से रुखसत हुए, दादी इस दुनिया से रुखसत हुई। मैंने नबी के अपनी जिंदगी के हालात इसलिए बयान किए कि रब अपने महबूब से बड़ा प्यार फरमाता है। और जब किसी को मनाना हो ना तो उसके सामने उसके प्यारों का जिक्र कर दो। अगर बाप नाराज हो तो बेटे की तारीफ कर दो। समझ रहे? किसी भी नाराज आदमी का बेटा गोद में उठा लो और जेब से कुछ निकाल के मोहब्बत से उसे दे दो। कितना भी नाराज होगा बाप, यकीनन उसके दिल में तेरे लिए रहम आ जाएगा। यह हमारे समाज का हाल है, जबकि हम अपने बेटों से उतना प्यार नहीं करते जितना रब अपने महबूब से प्यार करता है। हम अपने जाने वालों की याद में मुस्तफ़ा की बातें इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम मुस्तफ़ा की बातें करते हैं अल्लाह हमसे राज़ी होता है और वो जानता है कि ये जिक्र की महफिल इस मरने वाले की वजह से ये मुनक़िद की गई है, तो अल्लाह उस जिक्र के सदक़े में मरने वाले को जन्नत अता फरमा देता। और फिर अपना तो उसूल है मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख।
اپنے رشتے مدینے سے مضبوط کر لو۔ صاحبو میرے بولنے میں اگر کوئی غلطی آمدن صاحبن ہوئی ہو تو پروردگار عالم محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ سارے لوگ میرے ساتھ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ۔ میں نے کتنی بار آپ سے ہاتھ اٹھوایا ایمانداری سے؟ زیادہ مرتبہ تھکایا تو نہیں آپ کو نا؟ جب نہیں تھکایا تو پھر ایمانداری سے کلمہ تو زور سے پڑھ لیں سارے لوگ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بچوں ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔